مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیں آج کے زندہ کلام میں سے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل 7 باب 13 تا 14 آیات۔ تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ آمین۔ خدا کے زندہ اور نجات بخش پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کا شکر ہے کہ خدا ہمیں بارہا ہماری زندگیوں میں یہ موقع عطا فرماتا ہے کہ ہم خدا کے زندہ کلام کو پڑھیں، سنیں، سیکھیں اور خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے، کلام مقدس کے مطابق اس کے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں پھل لائیں اور باپ کے نام کو جلال دیں۔ تو آئیں آج چند لمحات کے لیے آج کی تلاوت کے مطابق دیکھتے ہیں۔ آج کے زندہ کلام کا عنوان ہے تنگ دروازہ۔ جس طرح آج کی تلاوت کے مطابق خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھا گیا ہے کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے۔ پھر آگے بتایا گیا ہے 14 آیت میں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ تو میری چیزوں، آج دیکھتے ہیں کہ حکمت کا کلام ہمیں کیا بیان دیتا ہے کہ تنگ دروازہ کیا ہے اور کشادہ دروازہ کیا ہے۔ میری چیزوں، تنگ دروازہ یسوع کی تعلیم ہے، کلام مقدس کی تعلیم ہے۔ جس طرح ایک حوالہ میں دیتا ہوں، مقدس متی کی انجیل 5 باب 38 تا 39 آیات۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ آمین۔ یہ ہے تنگ دروازہ۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص ایسا کام نہیں کرتا، کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ اگر میری گال پر کوئی تماچا مارے تو میں دوسرا بھی پھیر دوں، بلکہ اس سے بڑھ کر اس دوسرے شخص کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم عمل نہیں کرتے۔ ہمارے یسوع کی تعلیم تو بہت سخت تعلیم ہے، یہ آسان تعلیم نہیں ہے۔ میں ایک حوالہ عہد عتیق کے مطابق خروج کی کتاب سے دیتا ہوں۔ خروج کی کتاب 21 باب 23 تا 25 آیات۔ لیکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان لے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔ یہ شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن جب ہمارا یسوع اس دنیا میں آیا تو اس نے ہمیں فضل میں شامل کر لیا اور نئی تعلیم دی، نیا حکم دیا۔ جس طرح خدا میں یسوع کہتا ہے، جو میں نے پہلے یہ والا پڑھا ہے، کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، نہ
बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। तो मेरे जीजो, ये है तंग दरवाजा। कुशादा दरवाजा जो बदी करता है, जो गुनाह लोग करते हैं, नेकी करनी बहुत दूर की बात है, नेक अमल करना बहुत दूर की बात है। आज हमारी जिंदगियों में जीसस नेक अमाल देखना चाहता है, अपने हुक्मों की तमील करते हुए देखना चाहता है, अपने हुक्मों की पैरवी करते हुए देखना चाहता है। जिस तरह एक मैं हवाला और देता हूं खुदा के जिंदा कलाम में से, मुकद्दस मत्ती की इंजील 5 बाब 43 और 44 आयत। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से दावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ये है तंग दरवाजा। आज हम अपने सताने वालों के लिए दुआ नहीं करते, अपने आप के लिए दुआ करते हैं, अपने गिराने के लिए दुआ करते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ भी नाराजगी है, झगड़ा हुआ है, हम उसके लिए दुआ नहीं करते। हम कहते हैं कि बल्कि और अल्फाज बोल देते हैं उसकी बुराई के लिए। हम किसी दूसरे की भलाई नहीं चाहते। तो खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी में भलाई के काम देखना चाहता है, नेक अमाल देखना चाहता है, जो कि वो तंग दरवाजा है। आज हमने तंग दरवाजा से गुजरना है। यूहन्ना की इंजील 10 बाब 9 आयत। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मसीह यीशु दरवाजा है, वो हमारे लिए निजात का दरवाजा है, वो हमारे लिए अब्दी जिंदगी का दरवाजा है। वो दरवाजा हम तब ही गुजर सकते हैं उस दरवाजे से, उसके हुक्मों पर अमल करते हुए, उसके हुक्मों की तमील करते हुए। जब उसके हुक्मों को कबूल करेंगे, यीशु को कबूल करेंगे, उसकी पैरवी करेंगे, उसके हुक्मों की तमील करेंगे, तो फिर हम उस दरवाजे से दाखिल हो सकेंगे जो तंग दरवाजा है और जिंदगी को पहुंचाता है। कुशादा दरवाजा हलाकत को पहुंचाता है, वो बदी के काम है, वो इब्लीस के काम है। कुशादा दरवाजा जो है वो इब्लीस का दरवाजा है, तंग दरवाजा जो है वो यीशु का दरवाजा है। और यीशु कहता है कि दरवाजा मैं हूं, जो कोई मुझसे दाखिल होगा वो निजात पाएगा। आज हमें यीशु पर ईमान रखने की जरूरत है, उसको शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है और उसके हुक्मों की पैरवी करते हुए उसको अमल में लाने की जरूरत है, ताकि हम जब मुकम्मल तौर पर उसकी पैरवी करेंगे, जिस तरह खुदावंद यीशु यूहन्ना की इंजील 8 बाब 12 आयत के मुताबिक कलाम करता है कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आज हमें नूर में दाखिल होना है, आज हमें उस दरवाजा से दाखिल होना है जो जिंदगी का दरवाजा है, जो निजात का दरवाजा है। निजात का दरवाजा कौन है? यीशु है। निजात की राह यीशु है, अब्दी जिंदगी की राह यीशु है। जिस तरह यीशु कहता है यूहन्ना की इंजील 14 बाब 6 आयत के मुताबिक, राह हक और जिंदगी मैं हूं और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो मेरे जीजो, आज हमने उस हक को देखना है, उस राह को देखना है, उस जिंदगी को देखना है जो अब्दी जिंदगी का दरवाजा है। तो आए एक हवाला मैं जाके जिंदा कलाम में से पढ़ता हूं। रूमियों का खत 6 बाब 12 आयत के मुताबिक, पस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। पस पलूस उसूल लिखता है कि पस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे, क्योंकि जब गुनाह हमारी जिंदगी में बादशाही करेगा तो हम उसके गुलाम होंगे। वो कर राया किसके गुलाम? बादशाह की गुलाम होती है, बादशाह का हुक्म माना जाता है। अगर कोई बादशाह किसी रियासत का भी है, वो कोई ऐलान करता है तो उसको राया को कबूल करना पड़ता है।
इस तरह पौलुस रसूल लिखता है कि 5 गुना तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे, काम उसके ताबे होकर हैं। तो मेरे चीजों, आज हमने अबलीसी कामों से बचना है, अपने गुनाहों को तरक करना है, अपने जिंदगियों में अमाल पैदा करना है, अमल करते हुए खुदा के हुक्मों की पैरवी करते हुए नूर में चलना है और उस दरवाजा में से दाखिल होना है जो यीशु है। एक हवाला मैं पेश करता हूँ खुदा के जिंदा कलाम में से, कुर्सियों का खत 2 बाब 6 और 7 आयत। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। आज हमने यीशु को कबूल किया है, हम यीशु के लोग हैं और उसी में हमने जड़ पकड़नी है। जड़ पकड़ने का मतलब है हमारे ईमान की जड़ मजबूत होनी चाहिए। हमारा पूरा ईमान, पूरा तवक्कुल, पूरा भरोसा हमारे जीसस पर होना चाहिए और उसके हुक्मों की तमील करते हुए, उसकी फरमाबरदारी के साथ पैरवी करते हुए उसको शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। तो फिर ही हम तंग दरवाजा से दाखिल हो सकेंगे जो जिंदगी का दरवाजा है। तो मेरे जीजों, एक हवाला और मैं खुदा के जिंदा कलाम में से लेता हूँ, रोमियो का खत 8 बाब 13 आयत के मुताबिक, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त नबूद करोगे तो जीते रहोगे। आज हमने रूह के मुताबिक चलना है, अपने बदन में रूह के काम करने हैं, दाऊद यीशु के हुक्मों को अपनाना है, उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को डालना है। तो फिर ही हम उसकी मुकम्मल तौर पर पैरवी कर सकेंगे, क्योंकि मसीह यीशु हमें निजात देना चाहता है। वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। तो मेरे जो आज हमें मुकम्मल तौर पर ईमान रखते हुए, उसके हुक्मों की तामील करते हुए, उसकी इताअत में रहते हुए, उसकी फरमाबरदारी में रहते हुए, उसकी ताबेदारी में रहते हुए, बल्कि कामिल ताबेदारी के साथ उसके हुक्मों की तामील करते हुए अपनी जिंदगी में फल लाना है, और हम फिर ही उस तंग दरवाजा से दाखिल हो सकेंगे जो कि यीशु है, जिंदगी का दरवाजा है, निजात का दरवाजा है। तो फिर ही हम हकीकी निजात पा सकेंगे, क्योंकि हमारा जीसस हमें निजात देना चाहता है। मेरा और आपका यीशु हमें अब्दी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। मेरा और आपका यीशु हमें आराम में और अपने जलाल में और अपने आसमान की बादशाही में शामिल करना चाहता है। तो आज हम अपने किरदार के साथ खुदा के हुक्मों पर अमल करते हुए, उसके हुक्मों की तमील करते हुए, उसके सच्चे पैरोकार बनकर उसकी तमील करते जाएं और तंग दरवाजा में दाखिल हो सकें, ताकि हकीकी जिंदगी पा सकें और हकीकी निजात पा सकें। आमीन। आए आज का जिंदा कलाम हम सब के लिए, पूरी हाज़िर जमात के लिए, पूरी कलीसिया के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।